Dear student, we have today we are going to now start our new chapter, that is the effect of electric current. Already we have learned in our previous standard 9 there is a electricity and their effects. We have learned, but actually we have in this year we have go to the thoroughly and deep of the deep account of the electricity, the deep information. So we have introduced this chapter. Actually, electricity is a important need in our human being. That's okay. Day to day life it is very important, is essential. जैसे कि ह्यूमन लाइफ में जैसे अन्न, वस्त्र या निवारा, ये जो तीन चीजें अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसको मूलभूत या पायाभूत जो नीड्स है या फंडामेंटल नीड्स है, इसे फंडामेंटल नीड्स बोलकर हम इसको पहचानते हैं. उसी तरह से अपने जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का ही उतना ही महत्व है. अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने तो पिछले पीरियड में देखा है, यानी कि पिछले साल में तो देखा है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे इतना डिटेल्स नहीं देखा था. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डेफिनेशन. ओके. एक्चुअली अगेन good conductor, bad conductors means the electricity who to passes through the conductor. Yes, okay, such like that. And again, we have carried some simple experiment which is related to the electric effects or the electricity. So, in this year, we are actually going to somewhat depth into the electricity knowledge. So, we have starts our new chapter, that is the effect of electric current. Yes, in this effect of electric current, actually, we have learned here some important point. Which are the important points there? Number one, that is the actually we have go here one by one here. That is the first is the energy transfer in electric current. Yes, what is this energy transfer in the electric current? That is a विद्युत परिपथामध्ये ऊर्जेचे स्थानांतरण. हम इसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथामध्ये. यस, विद्युत परिपथ, that is electric circuit, है ना. In our home or in our daily uses some electric appliances, there are a electric circuit because every equipments or the gadgets it's functional due to that electric circuit. It's okay, and their need to functional it to that gadgets. Yes, there is energy. Is the energy is important here. It's play the important role. It's okay. That is the electricity energy. Again, we have go to the next heating effect of a electric current. We will see here the heating effect of a electric current. What is the heating effect of electric current? Heating effect of electric current is nothing but विद्युत धारेचे औष्णिक परिणाम, है ना. जैसे कि हम बोलते हैं इसको that is a thermal effect of electric current. Yes, okay. Actually means how the thermal effects are we have gains there is by using the some conductors which have a resistivity is more, and due to that resistivity of that conductor, yes, we have get the thermal effect. Means the we have go to the details in points details. Again we have again learns this important point, that is a magnetic effect of electric current. Yes, okay. What is the magnetic effect and how they play the important role in our daily life, day to day life? It's okay, because these are the important three aspects to learn this chapter. ठीक है. So we have focus on it. Actually we have focus on it. ठीक है. So देखिए बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कि थर्मल इफेक्ट हमने देखे थे, उसी तरह से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, है ना. मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर अपने जो दिन दैनिक जो गतिविधियां होती है, उस गतिविधियों में हम यहाँ पे इस मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके बहुत सारे इक्विपमेंट या गैडजेट्स हम यूज भी करते हैं. तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हम थोरोली डीप में अभी आगे आने वाले यूनिट्स में या सब यूनिट में हम देखेंगे. एक्चुअली चलिए हम अभी
इंट्रोडक्टरी अकाउंट्स के बारे में देखते समय थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए अभी हम दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या थोड़ा रिमेम्बर करना है। तो अपने जैसे कि हमने 9th क्लास में जो कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम थिंक करने के लिए थोड़ा सा अपनी मेमोरी को थोड़ा सा उसको पुश करेंगे या कुछ मोटिवेट करने के लिए हम थोड़े से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, टू डू यू रिमेम्बर इट्स थोड़े 8वां। तो यहाँ पे देखिए हम अभी रिमेम्बर करने का प्रयास करेंगे। तो देर इज वन सिंपल वन क्वेश्चन which is a question: how do we decided that a given material is a good conductor of electricity or it is an insulator? Firstly, students, we already known about the good conductor, yes, as well as the insulator. What is the insulator and what is the good conductor? ये तो मालूम होना चाहिए। ये ना मालूम हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो इसके बारे में हमने 9th में देखा था। तो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम है। तो बताइए यहाँ पे जो गुड कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो हमें कोई मटेरियल दिया गया, तो इस मटेरियल को लेकर इसमें से गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। यस, इट्स वेरी इजी, है ना। तो वहाँ पे क्या देखा था? बिकॉज materials or the matter, they are made up by the means that is no simple, that is no simplest factor, yes, okay, the smallest factor, ठीक है। we says one have electrons, yes, okay, so consisting electrons inside the matter, yes, if it is a free in state, that time it's a play as a good conductor, and when they have their electrons are binded, yes, okay, not have free movements, that is going to have with as an insulator, means those material, yes, have a or the show to free flow of electron. Those given material show the free flow of electron, yes, okay, such a material we have identify as a good conductor, and those given material they have a, that is a, means the does not show any electron flow there, means they have a bonded electron, that's a bound electron inside it, yes, that is as a insulator there, जैसे कि ये हमने यहाँ पे देखा है। अब ये जो हमारा पूर्व ज्ञान के ऊपर डिपेंड्स होता है, क्योंकि हमने 9th में ऑलरेडी देखा है। चलिए स्टूडेंट, अभी दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें यहाँ पे क्या पता है? आयरन इज ए गुड कंडक्टर। Obviously, iron is a good conductor. Yes, okay, 100% correct here. Yes, okay, because the iron show the free electrons. But can we use the iron wire into our making the electric, and that is electric circuit? Yes, as well as the, suppose we have construct the our building. Yes, okay, and after the construction we have feed the electricity, just okay, interiorly, and that time can you use the iron wires there? No, because the iron wire have a good conductor, but their resistivity it is a high, and due to that it's a good conductor, but we can't use in our, that is a इलेक्ट्रिक गैजेट्स। आयरन वायर को हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो गुड कंडक्टर है या कंडक्टर है। चलिए, तो ये कंडक्टर होते हुए भी, बट व्हेन वी हैव पिक अप द पीस ऑफ आयरन इज रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड, जो कि जमीन पे बिखरा पड़ा हुआ वाला जो आयरन का एक मेटल का टुकड़ा है, उसको हमने हाथ में ले लिया, तो कैन यू गेट देयर इलेक्ट्रिक शॉक? चलिए बताइए, अपने को इलेक्ट्रिक शॉक वहां पे महसूस होगा? चलिए, ऐसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने 9th में देखा था। जैसे कि देखिए, एक यहाँ पे मैं एक कंडक्टर बताने का प्रयास करता हूँ। सपोज दिस इज अ कंडक्टर हियर, ठीक है। आई हैव टेक द कंडक्टर, एंड आफ्टर द टेकिंग द कंडक्टर अगेन आई हैव टेक हियर द सम, जैसे कि जैसे अब यहाँ पे छोटे छोटे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
जैसे इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक छोटा इलेक्ट्रॉन है, ये छोटा इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे छोटा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जैसे अभी ये छोटे इलेक्ट्रॉन्स बना लेते, जैसे कि डॉट्स को लेकर हम अभी यहाँ पे चलेंगे। जो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दर्शाने का प्रयास करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जैसे कि रेड कलर से निर्देशित किया है या रेड कलर से बताने का प्रयास किया है। अभी इलेक्ट्रॉन के बाद जैसे मैं यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर से ये वाला एक प्रोटॉन जैसे यहाँ पे एटम से यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बताया, तो इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैव दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बियर्स द नेगेटिव चार्ज, दिस ओके। अगेन यहाँ पे जो छोटे छोटे दूसरे कलर वाले जो है ना, जैसे कि अलग से कलर में, वो कौन है बेटा, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। दैट इज वन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों वाले, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑलरेडी दिस इज वन हैव iron wire or conductor, but when is lay on a ground in a resting position, that time such condition following wire here. But actually in another condition, just okay, I have say here the another condition. So in that another condition, suppose this is a iron conductor, ठीक है। In that conductor, suppose we have provide here the high potential. High potential is nothing but positive. This is a positive here. This is a high potential effect. Means we have produced the high, provide the high potential current here. This okay, charge here we have indicate as a Q, Q plus charge. ठीक है, and such charge we have produced here. And after the providing charge, it is actually positive charge. Yes, and in physics there is one rule: opposite charges have a attraction, and due to that, this positive charge and out of them all negative charges, yes, these are one of negative charge, these are one of negative charge, negative charge, negative charge, negative charge, negative charge, yes, like this negative charge, they move towards, in which direction, toward the positive direction, ठीक है, समझ में आता है। और यहाँ पे जो दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करेंगे, मैं रेड कलर से यहाँ पे इंडिकेट करने का प्रयास करता हूँ। ये जो प्रोटॉन है, ये रेड कलर से हम दिखाएंगे, ये रेड है, 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 ये सब कौन है, दीज आर वन है पॉजिटिव हियर। अब ये जो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इट्स पॉजिटिव, इट्स अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द, देखिए इस पॉजिटिव से, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव चार्ज दौड़ने लगते हैं, और इन जो पॉजिटिव होता है वो बाजू होने लगता है या अपोजिट चार्ज की तरफ चलने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है, आफ्टर द प्रोवाइडिंग द potential, just okay, that is one have a charge, but in a laying position what happened, here it is a none any charge affect on that conductor or a wire, and that's why when you have put this material or the iron metal is in your hand, yes, that time you do not get any shock here, but actually such wire you have hold in your hand, that time you are, yes, of course you have get the shock there, it's okay. So what can you get the region here, which is the region, means we have get the region here, yes, electricity passes, yes, through the conductor when we have apply the high charge or the potential difference, means without any potential difference we do not get any formation of the electric current, means the formation of the electric current through the conductor, there is necessity of the potential difference, ठीक है। तो such like that we have learned here two questions, yes, and we have remember, and we have go somewhat, yes, nearer to this chapter, ठीक है। अभी देखिए हम अभी इस क्वेश्चन को आंसर देते हुए थोड़ा सा अपने
को, अपने ब्रेन को हमने मोटिवेट किया है किस तरफ आने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को पढ़ने के लिए। अभी हम यहाँ पे पढ़ने के लिए थोड़ा सा वार्म अप हो चुका है। अभी हम यहाँ पे अपने चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते समय अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे सोचना भी है हमें कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हम अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं तो अपनी दूसरी स्लाइड यहाँ पे है एक्चुअली this. So in this slide we have give some important or the information here. Yes, which informations we have give here? जैसे कि देखिए बेटा, so in our daily life, yes, we have learned already about the electricity, yes, in previous standard. So performing the different experiments there, यानी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिए वाले थे, कुछ कंडक्टर लिए थे, सेल लिए वाले थे, सेल के टाइप्स भी वहाँ आपने देखे थे। इसके बाद जब सर्किट भी अरेंज किया था, सर्किट जैसे अरेंज करते तो सर्किट को जैसे निर्देशित किया कैसे जाता है, उसके जो कुछ साइन थे वो भी हमने वहाँ पे पढ़े थे। तो उसी तरह से हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कैरी ऑन किए वाले थे। तो देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग टू द दैट्स वन हैव एक्चुअली नेगेटिवली पॉजिटिवली ऐसे चार्ज हमने यहाँ पे देखे थे। तो ये देखते समय हमें एक पॉइंट्स वहाँ पे मिला था, तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेक्ट करेंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, दैट इज वन हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कौन बता सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो सिंपल है, देखिए हमने डेली लाइफ में, yes, after the taking the bath, it's okay, when you are just clean the water, just okay, with the help of the just as a towel, just okay, and after the cleaning and take a total dry body, yes, we have become a fresh, just we have, and we have take a comb, and when you have take when you have take a comb, just okay, and that time can you notice there, when you have take a plastic comb, just okay, and comb into your hair, that time can you notice there such comb, yes, when you have lifted upward direction, automatically your hairs also, they may be also attracted towards the direction of the comb. Can you notice such incident in your morning periods or the day to day life? इसका आंसर तुम्हें तुम्हारे ओर से क्या मिलेगा, क्योंकि तुमने इन्हें नोटिस कर किया है। चलिए, तो अभी ये जो हमने एक उदाहरण देखा, उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने, जैसे छोटे बच्चे थे तब, अभी भी छोटे ही हम, लेकिन जैसे हम कोम करते थे, जैसे कि कभी भी अभी हम खेलते हैं तो हम हाथ में क्या करते हैं, जैसे कोम लेकर या कुछ कपड़े के ऊपर या किसी चीज के ऊपर वो उसको घिसते हैं, जैसे फ्रिक्शन करते हैं या घर्षण करते हैं। तो उस घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता है या कम होता है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम बनते हैं, और इसी से जो बनने वाली जो चार्ज होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज वन हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, परफॉर्म द वेरियस, यस, दैट इज वन हैव नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें हमें क्या मिलता है, देखिए, एक नेगेटिव चार्ज मिलता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। जो ज्यादा बनता है वो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो कम बनता है वो उससे नेगेटिव होता है। जैसे एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इन फिजिक्स में हमें क्या पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज हैव अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव चार्ज एंड सेम चार्ज हैव अ रिपल्शन। जैसे अपोजिट चार्ज होते तो अट्रैक्शन बताते हैं, और जो दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्शन बता रहे, और जो सेम चार्ज होते तो रिपल्शन बताते हैं। तो इसी चीज को लेकर तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, दैट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हमने यहाँ पे पढ़ा था। पहले वहां पे हमने एग्जाम्पल देखा था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके भी बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इट्स ओके, मीन्स हाउ दे आर द ट्रांसफर। जैसे कि देखिए बेटा, जैसे जैसे कुछ यहाँ पे कुछ पेपर के पीसेस बिखरे वाले हैं, जैसे कि ये पेपर का पीस है, एक बड़ा वाला बहुत बड़ा हो चुका, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ऐसे कुछ यहाँ पे मैं पेपर के पीसेस यहाँ पे
बताता हूँ, बिखरे वाले हैं। तो इस पेपर पीस को छोटे छोटे बिखरे वाले फैले वाले determined spreaded paper piece is on the floral region. Again we have take a comb or any glass rod. It's okay, after taking the total friction we have put on above the paper pieces and we observe it carefully. What you notice here, the paper pieces they attract toward the glass rod. It's okay, or the plastic comb. ठीक है, why? Because they are attract, because the paper pieces they possess a positive charge. It's okay, and such glass rod or the ebonite rod, suppose it is a ebonite rod, suppose if it is have a glass rod it possesses a positive. I have give the charge here a positive, that's why I have changed here rod. Yes, I do not take the glass rod, I have put here the ebonite rod because the ebonite possesses after the friction negative charge. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव बताया होता तो यहाँ पे मैंने ग्लास रॉड लिया होता, तो क्योंकि ग्लास रॉड पॉजेस द पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमने 6th में 7th में ये पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज बन रहे, एक पॉजिटिव बनता है तो निगेटिव बन रहा है। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट हैव नेगेटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस इज नेगेटिव चार्ज बोलने के बजाय हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्जेस, and due to that have opposite charges, what happens is they attract with each other. ठीक है, means all paper pieces are attracts toward this, that's glass rod. Means the electrostatic, that is a static electricity, it's important and it's a play important role in our human being also. Yes, which is the important role now in those days, that is a, that is a electrostatic effect, it is used for the, that is a pollution control. अब यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसके यही इफेक्ट्स को लेकर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि हवा में कोई अनवांटेड चीजें होती है, इसको ऐसे हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड को यूज कर कर जैसे अनवांटेड चीजों को हम क्या कर लेते हैं, उसको जमा कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉसिबल होता है केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म्स वेरियस एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, इट्स ओके, एंड द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट्स बिकम, दैट इज बिकमिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, ये क्यों हो रहा है, केवल पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज के कारण ही। इस ट्रांसफर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया है। ठीक है, तो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड जैसे कि हम 9th में, क्योंकि 9th को छोड़ना नहीं है हमें, we also studied about the electric current. Yes, in this chapter we will study about the electric current following through a conducting wire of an electric current flowing through a resistor. Yes, that is a electromagnetic induction, electricity, motor and generator. देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम फोकस करने वाले इस चैप्टर में क्या क्या फोकस करने वाले हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो देखिए हमने पढ़ा ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को देखना है यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा, फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर्स, जैसे कि रोध बोलते हैं ना, रेजिस्टर रियोस्टेट, जो जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो बहती है लेकिन उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो ऐसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसी बहती है, उसका जो मैकेनिज्म है यही यहाँ पे लर्न करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस, तो ये तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपने लाइफ में प्ले करता है ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि इसी को लेकर, इसी के आधार पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स में ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें दिखाई देती है, एंड इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन बाय माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक मोटर, यस, देखिए इसका तो अपने जीवन में अद्भुत महत्व है ना। जनरेटर, yes, it's also play the important role. Interesting chapter. So we have go thoroughly one by one in detail. Yes, we have learned in this chapter number 1 electric current.
इट्स ओके, एज वेल एज द फ्लो थ्रू इन द रजिस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, तो ऐसे इस सभी चीजों को लेकर अभी इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा डिटेल, इट्स ओके, और अपने इंटरेस्ट को बनाते हुए, है ना, और थोड़ा सा क्यूरियसिटी, है ना, होकर, क्यूरियस होकर हमें इस चैप्टर को थोड़ा सा लर्न करना है, क्योंकि ये चैप्टर अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ रोल्स या भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है, जो हमें डेली यूज में दिखाई देती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बनाने के लिए अभी हम चलिए दूसरी स्लाइड में आते हैं। चलिए, अभी जो अपनी दूसरी स्लाइड है, यहाँ पे एक सिंपल सी एक यहाँ पे हमें पिक्चर दिया वाला है। ठीक है, कितना इंटरेस्टेड है देखिए बेटा, ये बच्चा एक माइक्रोस्कोप, एक लेंस लेकर यहाँ पे ढूंढ रहा है ना, और हमें भी ढूंढने के लिए यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। चलिए वहाँ पे हम ऑब्जर्व भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, रेडी है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, फॉलोइंग पिक्चर में हमने क्या देखा है, देखिए बेटा, यहाँ पे एक हमें क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा, ये क्या है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है। ऐसे भी ड्राइंग रूम में यहाँ पे कुछ टीवी है, बैठने के लिए ये सोफा है या चेयर है ना, यहाँ पे टेबल है, उसके ऊपर लैंप है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा लैंप है, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे हीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें रखी वाली है ना। यहाँ पे दूसरे चित्र में यहाँ पे सीलिंग फैन इस दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला पिक्चर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पर्पजेस हमें दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वी हैव यूज द डिफरेंट पर्पजेस। कितना देखिए कमाल है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन कितनी पर्पसफुल है, बिकॉज with the help of the electricity, through the electricity, we, yes, we use the different kind of the appliances here. It's okay for different applications और अपने different home purposes, है ना, हमें मनोरंजन करना हो तो टीवी, yes, with the help of the electricity, it's a play, yes, okay, as well as the light होनी हो तो लैंप है, जैसे कि हमें समर डेज में बहुत सारी गर्मी होती है, हाँ, उससे बचाव करने के लिए थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट्स बनाना हो तो फैन है ना। चलिए, जैसे कि अभी यहाँ पे डोर बेल है, यही देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट बता रही है, इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बता रही है, इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे लाइट आता है, म्यूजिक बजता है ना बेटा, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट भी यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि हम जैसे टीवी के पास या नजदीक जाते हैं, उसको स्क्रीन को थोड़ा सा कपड़े के द्वारा हम पूछने का प्रयास करते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं, तो उसको पूछते समय क्या होता है बेटा, जैसे कि हम उसको पोछा लगाते हैं, या जैसे कि या ये उसको डस्टिंग करते हैं कपड़े के द्वारा, जैसे कि डस्टिंग किया जाता है, तो उस डस्टिंग के द्वारा हम जब डस्ट करते हैं तो कपड़ा ऑटोमेटिकली इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द दैट स्क्रीन, इट्स ओके, as well as sometimes your hairs is automatically the attracts toward that the screen. This is why, because that is an electrostatic force and it is applied is due to the friction, that is one of friction force, है ना। हमने तो पहले देखा था, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा, द रिजल्ट ऑफ अ imbalance between the negative and positive charges, imbalance between the negative and positive charges, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमें दिखाई देता है, एंड दीज चार्जेस कैन बी बिल्ट अप ऑन अ सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि कंघी के ऊपर बना था, या ग्लास रॉड के ऊपर बना था, एपोनेटिक के रॉड के ऊपर बना था, है ना, तो उसे सरफेस के ऊपर यहाँ पे बनता है, और ये कब तक रहता है, जब तक वो चार्जेस वहां पे है, और जैसे कि आपने टूटने से या फूटने से, नीचे गिरने से वो चार्जेस खत्म भी होते हैं, है ना, वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, लेकिन कब तक रहता है, जब तक उसके ऊपर चार्जेस बने रहे तब तक, और चार्ज बने रहना वहां पे खत्म होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दिखाता। कंघी भी जैसे हम
खुली ओपन स्पेस पे रखते हैं, उसको लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बताती, लेकिन हम उसको जब घर्षण करते हैं या एयर में उसको घुमाते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट या चार्ज बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये केवल सरफेस एरिया के ऊपर ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट। तो इस डायग्राम के द्वारा हमने क्या लर्न किया है, देखिए बच्चों। तो यहाँ पे ए वाली डायग्राम, बी वाली डायग्राम और सी वाली डायग्राम, डायग्राम नहीं बोलना है, यहाँ पे पिक्चर्स है। तो इस पिक्चर में क्या मिला है देखिए। तो एक पिक्चर में जैसे कि ड्राइंग रूम है, ये सीलिंग फैन है, अपना छत है, छत और ये इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है। तो ये तीन चित्र दिए वाले हैं, तीनों चित्र को लेकर अभी हमें यहाँ पे थिंक करना है। तो देखिए बेटा थोड़ा थिंक कीजिए, तुम्हें कुछ याद आता है नाइन्थ में से? चलिए बताइए। देखिए ये इंट्रोडक्टरी अकाउंट है, नाइन्थ में से हमें क्या याद आ रहा है इसको देखकर? देखिए हमने वहां पे एक लॉ पढ़ा था, किसको याद आ रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कौन सा लॉ? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म्स टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू, सॉरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एंड साउंड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट, देखिए लाइट आ रही है, देखिए चलिए बल्ब ग्लो हो गया है ना। देखिए लाइट ही लाइट, सारा लाइट यहाँ पे बिखर गया है यहाँ पे हॉल, है ना। चलिए दूसरा वाला, जैसे कि यहाँ पे फैन है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये घूमने लगता है, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ पे जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये बेल बजने लगती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। चलिए तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये देखा है। तो स्टूडेंट आज इंट्रोडक्टरी अकाउंट में बस इतना ही। लेकिन अभी देखिए, मैं तो तुम्हें देते ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी वो एक करना है, क्योंकि अब तक हमने कितने लेसन खत्म किए हैं यहाँ पे? पहले 3 लेसन पूरे कर दिए हैं, यस। और हर एक लेसन के बाद होने के बाद मैंने अपने चैप्टर में जो नीचे दिए वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो भी पूरा नोट्स के रूप में अपने को प्रोवाइड किया है। तो उसे अक्सर देखते रहना है, पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत या कठिनाई हो तो मुझे कॉल करना है, ठीक है बेटा। चलिए कल हम देखेंगे, यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू।